Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to the online classes of Shah Latif Public School Makli. I am Ikra Yaqut, your English teacher. I hope you all are fine and safe at your home. As you know that there is pervasive condition of coronavirus, due to which Shah Latif Public School Makli has started online classes so that you can continue your studies staying safe at your home. Now let's talk about the English book, which is a new edition in class 4, that is Oxford Broadway, a multi-skill course in English. Now before starting our lesson, we will have an overview of contents, in which we have 7 units and each unit contains 2 parts. A prose, which is simply your lesson, and the second part is of poetry. In this term, we will complete 4 units inshallah. Now let's come to the lesson. The first lesson of your book has titled King of All the Animals. Now before starting the lesson, I want to highlight that there are similar meanings written in the side column of your book. These are the similar meanings of difficult words, and I have found some more difficult words in this text. So kindly keep a notebook with yourself to note those words along with their meanings. And if you have any question or any query regarding the lecture, you can also note in your notebook and you can ask me later. Now for your convenience, I will also explain this lesson in Urdu so that you can understand better. Now let's come to the lesson. The title of first lesson of our book is King of All Animals. King of All Animals is a Chinese folktale written by Vashanti Rahman. Vashanti Rahman is an author. He was born in America. He wrote many books for the children, and King of All Animals is one of his edition. Now what is the meaning of King of All the Animals? King of All the Animals का मतलब होता है सब जानवरों का बादशाह. Let's start. Who is truly king of all the animals? Now they are asking us a question that who is the king of all the animals? Is it the most fearsome animal or is it the most intelligent animal? क्या वो जानवर सब जानवरों का बादशाह होता है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो या जो सबसे ज़्यादा खौफनाक हो, या फिर वो जानवर सब जानवरों का बादशाह होता है जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो? Read this Chinese folktale and find out. To know about that who is the king of all the animals, we have to go through this story. Now let's start. When tiger walked openly through the jungle, he was feared. जब शेर जो है वो खुल्लम खुल्ला चला करता था जंगल में तो सब डर जाते थे. वो खुद में एक डर हुआ करता था. How? The deer fled in alarm. The monkeys swam screaming to the highest branches. जो हिरन हुआ करती थी वो भाग जाया करती थी क्योंकि वो ये समझती थी कि उसके आसपास कोई ख़तरा है, या उसको ये महसूस होता था कि उसकी जान को ख़तरा है, तो वो भाग जाया करती थी. नाउ अलार्म इज़ द फर्स्ट वर्ड रिटन इन द कॉलम, दैट इज़ फियर दैट समथिंग डेंजरस विल हैपन. जब किसी को खौफ हो कि कुछ ख़तरनाक होने वाला है, उसको हम अलार्म कहते हैं. ठीक. नाउ द मंकीज स्वंग स्क्रीमिंग टू द हाईएस्ट ब्रांचेस. द मंकीज़ जो बंदर हुआ करते थे वो एक शाख से दूसरी शाख पर छलांगे लगाया करते थे चिल्लाते हुए. स्वंग इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्विंग एंड स्क्रीमिंग इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ स्क्रीम. स्वंग का मतलब होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब जब आप झूला झूल रहे हो तो झूला पहले आगे जाता है फिर उसी लाइन पे पीछे आता है, तो ये जो मूवमेंट होती है इसको हम स्विंग करना कहते हैं. स्क्रीम इट मीन्स टू स्पीक लाउड और टू शाउट. स्क्रीम मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना या शोर मचाना. तो जो हिरन हुआ करती थी वो ख़तरे की वजह से या खौफ की वजह से भाग जाया करती थी, और जो बंदर हुआ करते थे वो एक शाख से दूसरी शाख पर जो है वो झूला झूलते थे और वो इस वजह से चिल्लाते हुए एक शाख से दूसरी शाख पर जाया करते थे. द फ्रॉग्स डाइव्ड इनटू द डीपेस्ट पूल. मेंढक जो हुआ करते थे वो डर की वजह से, खौफ की वजह से गहरे तालाबों के अंदर जो है वो गौते लगाया करते थे. टू डाइव मीन्स टू गो इनसाइड द डीप वाटर. गहरे पानी के अंदर चले जाना, गौते लगाना या फिर तैरना, इसको हम डाइव कहते हैं. एंड द टर्टल्स क्लोज देयर शेल्स एंड होप्ड टू बी मिस्टेकन फॉर मेयर रॉक्स. जो कछुए हुआ करते थे उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर एक शेल हुआ करता है जो कि एक हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ होता है.
ये शेल बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे कि कोई पत्थर हो सख्त सा। तो जब कभी कछुए को अपने आसपास कोई ख़तरा महसूस हुआ करता है तो वो अपनी बॉडी को उस शेल से कवर कर लिया करता है, ताकि जो कोई भी जानवर जिस जानवर से उसको ख़तरा हो, जब उसको देखे तो उस जानवर को यूँ ही लगे कि ये पत्थर पड़ा हुआ है और उसकी जान बच जाए। तो जो कछुआ हुआ करते थे वो अपनी बॉडी को शेल के साथ कवर कर लिया करते थे, जिसकी वजह से शेर को लगता था कि वहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है और वो बच जाया करते थे। इवन द वाइल्ड ऑक्सन हम जंगली बैल को कहते हैं, क्रैशिंग देयर वे थ्रू द अंडरग्रोथ केप्ट अ रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। जब जंगली बैल सफ़र करते हैं तो वो एक झुंड में चला करते हैं साथ साथ। तो जब जंगली बैल साथ साथ चला करते थे और जब कभी उनको पता लगता था कि जो टाइगर है, जो शेर है, वो जंगल में घूम रहा है, तो वो भी अपने आप में एक फासला रख के चला करते थे। नाउ the second word written in the column is undergrowth, bushes and plants that grow close together under trees in woods and forests. जंगलों में हम देखते हैं कि वहाँ पे घने दरख्त होते हैं, तो जो घने दरख्तों के साथ छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं उनको हम अंडरग्रोथ कहते हैं। कैप नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रूली थॉट टाइगर एज ही अटर्ड अ रोर दैट शूक द जंगल, आई एम द किंग। वाकई में पूरा का पूरा जंगल हिल के रह गया जब शेर ने चिल्लाते हुए कहा कि आई एम द किंग, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। When tiger stopped and hunted, none could see him. Now the third word written in the column is stalked. Stalked, the similar meaning of stalk is moved slowly and quietly towards an animal in order to kill it. जब आप किसी जानवर की तरफ इस इरादे से बढ़ रहे हो कि आप उसको मार सकें या उसका शिकार कर सकें, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो जब कभी जो टाइगर, जो शेर हुआ करता था, जब अपने जानवर की तरफ इस इरादे से बढ़ता था कि उसको मार सके या उसका शिकार कर सके, नन कुड सी हिम, कोई भी उसको देख नहीं पाता था। वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट नन ऑफ द एनिमल कुड सी टाइगर व्हेन ही हंटेड और व्हेन ही स्टॉप्ड? ही क्राउच्ड, वो क्या किया करता था? नाउ लेट्स फर्स्ट see the meaning of crouch. The fourth word written in the column is crouched. The similar meaning of crouch is bent his legs and back so that his body was close to the ground. अपनी टांगों को वो इस तरह से मोड़ता था, इस तरह से मोड़ता था कि उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाया करती थी और वो बिल्कुल ज़मीन, ऐसा लगता था कि जंगल की ज़मीन ही है, शेर नहीं है। तो उसकी वजह से कोई भी जानवर उसको पहचान नहीं पाता था कि ये टाइगर है या ये जंगल की ज़मीन है। अब वो जंगल की ज़मीन के जैसा क्यों लगता था? द लाइट दैट फिल्टर्ड थ्रू द लीव्स एंड ब्रांचेस मेड पैटर्न्स ऑन द जंगल फ्लोर। क्योंकि जब लाइट आती है, यहाँ पे वर्ड है फिल्टर्ड। द सिमिलर मीनिंग ऑफ फिल्टर इज़ टू केम थ्रू इन स्मॉल अमाउंट्स, मतलब किसी भी ज़रिए से होके आना लेकिन कम मिकदार में। तो यहाँ पे जो ज़रिया है वो है पौधे और शाखें। तो जब कभी जो लाइट थी वो जंगल में आती थी पौधों और शाखों से होकर, तो उसकी जो अमाउंट होती थी वो बहुत कम होती थी, मतलब लाइट बहुत कम मिकदार में जो है वो जंगल में आती थी, क्योंकि घने पौधे होते थे और उसकी वजह से कंप्लीट जो सूरज की रोशनी है वो जंगल की ज़मीन पर नहीं आ पाती थी। तो जब लाइट थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जंगल की ज़मीन पे आती थी तो वहाँ पे एक नक्शा बन जाता था। वो नक्शा कैसा होता था कि जहाँ जिस एरिया पे लाइट पड़ रही है वो एक ब्राइट एरिया बन जाता था, और जहाँ पे जिस एरिया पे लाइट नहीं पड़ रही वो एक डार्क एरिया बन जाता था। तो एक ब्राइट एरिया, एक डार्क एरिया, फिर से एक ब्राइट एरिया जहाँ पे लाइट पड़ रही है सूरज की, और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही सूरज की वो एक डार्क एरिया। तो इस तरह से एक पैटर्न बन जाता था। अब ये जो पैटर्न है वो मैच करता था टाइगर के कोट से। यू कैन सी दैट मैच्ड हिज कोट, कि ये जो पैटर्न बनता था जंगल की ज़मीन पे वो बिल्कुल इस तरह का होता था जो टाइगर के कोट के ऊपर होता है। नाउ द सिमिलर मीनिंग ऑफ कोट इज़ हेयर, द फर और द हेयर दैट कवर टाइगर्स बॉडी। जो बाल होते हैं टाइगर की बॉडी के ऊपर जो उसको कवर करते हैं उसको हम कोट कहते हैं। तो जो पैटर्न जंगल की ज़मीन पे बनता था लाइट की वजह से वो बिल्कुल वैसा ही बनता था जैसे कि टाइगर की बॉडी का कोट होता है। तो कोई भी जानवर उसको नहीं पहचान पाता था कि ये हाँ यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे हमें ख़तरा महसूस हो रहा है। नाउ वर्ड्स, लेट्स मूव फर्दर। The deer grazed quietly. Now you have to see the picture. You can see that deers are grazing quietly. मतलब जो हिरन है वो बड़े आराम से घास चर रही हैं। Graze, the similar meaning of graze, that act of
ईटिंग ग्रास, जब भी कोई जानवर घास खाता है तो हम उसको ग्रेजिंग करना कहते हैं, चरना कहते हैं। जैसे कभी बकरियां हैं, गायें हैं, तो ये जब घास वगैरह खाती हैं इसको हम ग्रेजिंग कहते हैं, मतलब घास खाना या चरना। तो यू कैन सी इन पिक्चर कि जो डियर हैं वो बड़े आराम से घास चर रही हैं। द मंकीज प्लेड इन द लोएस्ट ब्रांचेस, बंदर जो हैं वो शाखों के साथ शाखों पे लटक लटक कर खेल रहे हैं। द फ्रॉग्स बास्क्ड on the lily pads. Now let's move to the column. The seventh word is basked. The similar meaning of basked is enjoyed sitting in the sun. जो मेंढक है, you can see in the picture that frog is sitting on the lily pad and he is enjoying the sunlight. बास्क्ड हम क्या कहते हैं कि सूरज की रोशनी में बैठ के उसके मज़े लेना, सूरज की रोशनी के मज़े लेना। तो जो नाउ द लिली इज़ अ वाटर प्लांट, जो लिली पौधा है वो पानी में पाया जाता है, और जो फ्रॉग जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो एक लिली पैड है, मतलब लिली पौधा जो है उसका पत्ता है जिसके ऊपर फ्रॉग बैठ के सूरज की रोशनी के मज़े ले रहा है। एंड द टर्टल्स लम्बर्ड बाय, लेट्स सी द सिमिलर मीनिंग ऑफ लम्बर्ड बाय विच इज़ मूव्ड स्लोली। लम्बर्ड बाय हम उसको कहते हैं बहुत आहिस्ता से चलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कछुआ है वो बड़े आराम से अपने मज़े से चल रहा है। ये सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और किसी को नहीं पता कि शेर जो है या जो टाइगर है वो बिल्कुल उनके पास बैठा हुआ है। नाउ इवन द वाइल्ड ऑक्सन क्रैश्ड थ्रू द अंडरग्रोथ जस्ट इंचेस फ्रॉम द टाइगर्स नोज, यहाँ तक कि जो जंगली बैल हैं वो भी बड़े मज़े से घास से होते हुए जा रहे हैं, झाड़ियों से होते हुए जा रहे हैं, और उनके और शेर के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा फासला है। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज़ अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन द टाइगर एंड द वाइल्ड ऑक्सन। तो जो जंगली बैल है और जो शेर है उसके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा फासला है, और जंगली बैल को नहीं पता कि शेर जो है वो बिल्कुल उसके पास बैठा है और वो बड़े मज़े से वहाँ से चले जा रहा है। Now with one swift bound, now let's see again column. The word bound has similar meaning jump, मतलब छलांग लगाना, and the swift means rapidly, बहुत तेज़ी के साथ। With one swift bound, tiger could have the dinner of his choice. अगर शेर चाहे तो वो बड़ी एक तेज़ रफ्तार की छलांग लगाकर अपनी मर्ज़ी का डिनर कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से जिसको भी चाहे जिसका भी शिकार कर सकता है। Now this is the end of today's lecture. Now I want to mention here that I have written some other difficult words here along with their similar meaning, so you have to note it in your notebook along with the Urdu or Sindhi meaning. Now till then, Allah Hafiz, take care.